ابلیس کی بادشاہی ہے. خدا خوف کو دور کرتا ہے کہ ہم اس کی عبادت بے خوف کریں. خوف ہمیشہ آگے بڑھنے سے ہمیں روکتا ہے. عبادت تے بھی ڈردے ہی آنے سی جی آج چھٹی کر لئی تو پھر کھاواں گے کی. میری بات کو سمجھ لیں, خوف ہے کہ نہیں ہے؟ خوف کے ساتھ عبادتیں کر رہے ہیں. ڈر ہے میں نے یہ دن دے دیا خداوند کو تو میرا کام خراب ہو جائے گا. مت ڈرو کہ کیا کھاؤ گے, کیا پیو گے, کیا پہنو گے. ان ساری چیزوں کی فکر تمہارے آنسوں گا. آج بہت سارے لوگ نے یسوع تینوں بڑا پیار کرنا ہے, ساڈا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے, لیکن اس سے کام نہیں چلے گا. جب وہ کہتا ہے نا کہ چاہ بنا کے لیا, چل جا دعا کر اٹھ کے, چل جا کلام پڑھ اٹھ کے, چل گال نہیں کرنی, فراڈ نہیں مارنا, جھوٹ نہیں بولنا, خداوند یہ نہیں ہو سکتا. پیار تینوں بڑا ہی کرنا. لیکن جب آپ کی وسیع زندگی میں ہے تو پھر آپ کو کسی چیز کی ڈر اور خوف نہیں. آپ کو پتا ہے یہ کی طرح کے جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی مرضی سے. ہاللیلویا. آپ تیار ہیں خدا کے کلام کو سننے کے لیے؟ آئیے زور و تعلیم کے ساتھ خدا کے کلام کو ہم ویلکم کریں. میرے ساتھ کلام مقدس میں سے سنیے گا. میں آپ کے لیے خدا کے کلام میں سے پڑھنے والا ہوں. بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح کا مکاشفہ جو یوحنا عارف کو ملا, نئے عہد نامہ کی آخری کتاب یوحنا عارف کا مکاشفہ, اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت سے 17 آیت تک میں آپ کے لیے پڑھوں گا. اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا میں نے ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ پر باندھے ہوئے تھا. اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے, اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند تھیں. اس کے پاؤں خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو, اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی, اور اس کے داہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے, اور اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی, اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا, اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر, میں اول اور آخر اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا اور دیکھ اب بالآباد زندہ رہوں گا, اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت کا والا کہیں آمین. یوحنا عارف کو مسیح نے یہ مکاشفہ, یہ ریویلیشن, یہ بھید, یہ راز دیا کہ خوف نہ کر, خوف نہ کر, میں مرا نہیں بلکہ زندہ ہوں. خوف خدا کی بادشاہی نہیں ہے, خوف ابلیس کی بادشاہی ہے. آپ دیکھیں, اور یہ گناہ کے سبب سے ہے. آدم اور حوا جب ان کی زندگی میں کوئی نافرمانی نہیں ہے تو وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں, وہ خوفزدہ بھی نہیں ہیں, اور وہ دلیری سے انتظار کرتے ہیں کہ خداوند آئے اور ہم اس سے بیٹھ کر باتیں کریں, ہم اس سے رفاقت کریں, اس کے ساتھ فیلوشپ کریں. ان کی ہمیشہ سے ہر روز یہ خواہش ہوتی, اور وہ اس تجسس میں رہتے, اس جستجو میں رہتے, اور وہ انتظار کرتے کہ کب وہ وقت آئے گا جب خدا ہم سے ہم کلام ہوگا اور ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر فیلوشپ کریں گے. یہ کب ہے؟
जब खौफ नहीं है। लेकिन जब खौफ आया तो फिर इन्होंने खुदा की रफाकत में जाने से खौफ करना शुरू कर दिया, डरना शुरू कर दिया, वो छुपना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि फिर गुनाह के सबब से ये मुश्किल था कि वो खुदा का सामना कर सकते। बाइबल कहती है उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को न देखेगा। इसका मतलब है पाकीज़गी जो है वो हमें खुदा के सामने खड़ा करती है। जब हम खुदा के हुजूर में पाक होते हैं तो फिर ही हम उसके हुजूर में खड़े हो सकते हैं। यीशु मसीह ने भी मुबारकबादियों में कहा, पहाड़ी आवाज में उसने कहा, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, वो खुदा को देखेंगे। इसका मतलब है आदम और हवा का खुदा को देखना, खुदा की हजूरी में रहना, खुदा के साथ रफाकत करना, खुदा के साथ बातें करना, उससे गले मिलना, उसकी आगोश में रहना, ये उस वक्त मुमकिन था जब वो पाक था। आज बगैर पाकीज़गी के भी लोग बड़े बेखौफ करी सारा कुछ जानते ने ते दलेरी में कहणगे है हमारे बाप, फिर अखा बंद करके अखा खोल के कहणगे खुदा बिन तेरा शुक्र तू यहां मौजूद है। हाउ डू यू नो, कैसे जानते कि खुदा मौजूद है? याद रखिए एक पर्दा है हमारे और खुदा के दरमियान, और वो है पाकीज़गी का पर्दा। अब अरसा दराज से खुदा रुपोश रहा, गुनाह जो था वो लिखा कि नस्ल दर नस्ल फैल गया, उसके बाद सब मर गए, खुदा के जलाल से महरूम रहे, खुदा के जलाल से दूर हो गए, रफाकत से दूर हो गए, खुदा से दूर होते चले गए, और ये सिलसिला सदियों चलता रहा जब तक खुदावंद का बेटा खुदावंद यीशु मसीह जाहिर नहीं हुआ। उसने इस जुए को तोड़ा, सलीब पर चढ़कर लिखा कि उसने हैकल का वो पर्दा जो खुदा और कलीसिया के दरमियान था, जुदाई का वो दीवार जिसके सबब से खुदा हम तक आजादी से नहीं पहुंच सकता था, उसको उसने लिखा दो हिस्सों में कर दिया। खुदा वहां से निकला और हमारे पास आ गया। इससे बेहतर कि हम बेखौफ होकर खुदा की प्रस्तश और शुक्रगुजारी करें। हम जानते हैं कि जब तक यीशु मसीह ने यह मुमकिन नहीं किया, हमारे लिए मुमकिन नहीं था। आप देखें जब कोहे सीना पर मूसा खुदा से बातें करके उतरता है तो बाइबल कहती है खुदा ने कहा कि इनको कह के पहाड़ से दूर रहें, पहाड़ के नजदीक ना आए, क्योंकि मैं भस्म करने वाली आग, मैं पाक हूं, और ये ना हो कि ये लोग पहाड़ के नजदीक आए और वो हलाक हो जाए। इसलिए जब मूसा उतरता है तो बाइबल कहती है कि उसके चेहरे पर इतना जलाल था खुदा के साथ रफाकत में रहने के वजह से कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इस्राएली कहने लगे कि तू अपने चेहरे पर नकाब कर, पर्दा डाल ले, हम तेरा चेहरा नहीं देख सकते, तो तेरे खुदा को देखेंगे तो यकीनन मर ही जाएंगे। यीशु मसीह ने वो रफाकत बहाल की बाइबल मुकद्दस में लिखा है ताकि हम बेखौफ खुदा की प्रशंसा करें। यीशु मसीह ने मरकर उसने हर तरह के गुनाह के जुए, हर तरह के खौफ के जुए, हर तरह की तारीकी के जुए और हर तरह की मौत के जुए उसने तोड़ दिए, और आज हमें बड़ी आजादी से खुदावंद की हुजूरी में प्रस्तुत करने का फजल मिलता है। मेरे भाई और बहनों, यूहन्ना आरिफ ने देखा, उसने उसको देखा जिसके लिए वो कैद था और जिसकी वो प्रशंसा करता था, और वो झुका हुआ था, जिसके लिए वो सख्त पतमस के जजीरा में सख्त तकलीफ उठा रहा था। उसको मौत में धकेल दिया गया मसीह के लिए, लेकिन उसने कबूल किया, वही उस पर जाहिर हुआ। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हमने पढ़ा भी
17वीं आयत में कहता मैं मुर्दा सा होकर उसके कदमों में गिर पड़ा। उसने क्या कहा? आगे से उसने क्या कहा? खौफ, यूहन्ना खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूं, हाँ मैं जिंदा हूं और हाँ मैं मर गया था, जिंदा हूं, अब्दुल अब्बास जिंदा हूं, और मौत और आलमी अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। वो रुकावटें जिनकी वजह से मैं तुमसे मिल नहीं सकता था, मैं इंसान के करीब नहीं आ सकता, वो सारी के सारे कुदरत और इख्तियार उसका मेरे पास करता हूं। हालेलुया। अब खौफ खाने की जरूरत नहीं है। खौफ हमेशा आगे बढ़ने से हमें रोकता है। हम किसी को प्यार करते हैं, कोई भाई है, कोई बहन है, हम किसी से मोहब्बत करते हैं, तो हम उससे मोहब्बत तो करते हैं, हम उसको और ज्यादा प्यार करना चाहते हैं, लेकिन हमें खौफ और डर होता है। क्यों? कि अगर मैं कहीं ज्यादा बढ़ गया, इन मुंह तो खा देता, तो फिर मेरा क्या होगा? हम एक दूसरे से प्यार करने से डरते हैं कि ये मुझे धोखा न दे दे, मुझे चीट ना कर जाए, ये मेरे लिए तकलीफ का बास ना, ये मुझे गलत ना समझ ले। इबादत भी डरते ही आने सी जी, आज छुट्टी कर ली है तो फिर खावांगे की, मेरी इन्नी दी दिहाड़ी लगनी सी, अज उदा करांगे की। मेरी बात को समझ नहीं, खौफ है कि नहीं है? रिश्तेदार आए इन्होंने छड़ के जावांगे तो बुरा मल आ जाएंगे, एक ही कहेंगे। हम इबादत भी खौफ और डर में करते हैं। जब मैं अक्सर कहता ना कि चुल्हे ते हांडी हुंदी है, बुढ़ी घर हुंदी, बीबी जी हुंदी इबादत च, ते दिमाग ओदा चुल्हे ते हुंदा। इस तरह बंदा हुंदा इबादत च ते दिमाग किथे हुंदा? काम ते। खौफ के साथ इबादतें कर रहे हैं, डर है मैंने ये दिन दे दिया खुदावंद को तो मेरा काम खराब हो जाएगा। खुदा ने कहा था इस्राएलियों से कि 6 दिन तक तुम काम करना, 7वें दिन कोई काम न करना। और यहूदी आज भी इस बात पर कायम है। वो आज के दिन सफर नहीं करते, वो आज के दिन चूल्हा नहीं जलाते, वो आज के दिन कोई ऐसा काम नहीं करते जिसमें कुछ मेहनत करना पड़े। और कुछ निकम्मे लोग निकल जाते थे मन बटोरने के लिए, तो क्या होता था? जो 6 दिन उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था ना, खुदा ने क्या कहा था? 7वें दिन नहीं जाना, 6वें दिन जितना जोर ला लो, जितना लाना, ठीक है। जो गया 7वें दिन नौकरी पे, जो गया मन बटोरने, जो अन्न इकट्ठा करने गया, उसका जो घर पे उसने जमा किया हुआ है वो भी कीड़े पड़ जाएंगे, क्या सड़ जाएगा। खुदा खौफ को दूर करता है कि हम उसकी इबादत बेखौफ करें। खौफ न कर, मैं तेरा यहोवा येरी हूं, और मैं मुहैया करने वाला हूं। और जो नहीं जाते थे ना, उनको जो जितना आखिरी दिन होता था ना, 6ठे दिन वाला, वो डबल हो जाता था अगले दिन के लिए भी। जो डरते जानते सन उन्होंने जरा प्यार होता सी, बाइबल कहते कीड़े पड़ जाते थे, उनको खराब हो जाते, बदबू मारता था। आज हम बहुत सारा गला सड़ा खाना खा रहे हैं बेखौफ इबादत ना करने की वजह से। छोड़ दें सब कुछ। जब इबादत का वक्त है, खुदा की हजूरी में आने का वक्त है, आप छोड़ दे कि क्या है हमारे घर में। शायद मैं लॉक भी जो लगा हुआ वो लगाना भूल गई हूं, मैंने किचन को लॉक नहीं लगाया, मैंने अपनी जो पैसों वाली कबड़ है उसको मैंने लॉक नहीं लगाया। आपके अंदर से ये डर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर ये डर होना चाहिए कि मैं जिसके पास जा रहा हूं वो हर तरह से मेरे हिफाजत करता है, बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखता है, और वो मुझे बरकत देने की कुदरत रखता है, वो हर तरह से मुझे संभालता है। ज़बूर 37 और उसकी 4 आयत में लिखा है, खुदावंद से डरने वालों के चारों तरफ कौन है? कुछ ही बोलो जरा, कौन? उसका फरिश्ता। वो कोई बड़ा जे है तो बहुत सारे साढ़े, एक सिक्योरिटी गार्ड फरिश्ता होवे,
1 लाख मुआबी मारना मुश्किल नहीं। चारों तरफ फरिश्ता, खुदा का फरिश्ता खैमा जन है। आप खुदा की आंख से एक सेकंड के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी ओझल नहीं। मैं महसूस करता हूं खुदा की हुजूरी को हमेशा। वो हमेशा हमें संभाले हुए, लगता नहीं है कि कोई हमारे साथ है ना, लेकिन वो अनदेखा खुदा हमेशा अपने फरिश्तों के वसीला से हमारी निगहबानी करता है ताकि हमें खौफ ना हो। दाऊद कहता था, मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से इबादत च माड़ी जी ओढ़ कर ली आ जाए ना, छिपकली आ जाए लिजर्ड, यकीन करो पूरी जमात दियां दौड़ा लग जांदियां ने, खास तौर पर बीबियां दी। बंदे भी आजकल इंज आ रहे हैं रेडीमेड जी, जी आजकल की नस्ल भी आती है। यीशु ने कहा, जाओ सांपों और बिच्छों को कुचलो और दुश्मन की कितनी कुदरत पर? सारी कुदरत पर। जो कुछ इब्लीस के पास है, अब वो सब कुछ आपके इख्तियार में है। क्यों? यीशु ने गल कही क्यों? ताकि आप बेखौफ खुदा की हुजूरी में जिंदगी गुजारें। मत लिखा कि परेशान हो, मत बेदिल हो, मत डरो कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। इन सारी चीजों की फिक्र तुम्हारे आसमानी बाप। तुम बड़े हो कि अपने बच्चों को अच्छी चीजें देने जानते हो, तुम मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तो फिर तुम्हारा आसमानी बाप हूं, उसके बारे में क्या ख्याल है? खौफ ना खा यूहन्ना, मैं मर गया था, अब मैं मरा हुआ नहीं, अब मैं जिंदा हूं। अब मौत की भी और आने रवा की भी कुंजियों में पास, अब तुम कैद में नहीं बल्कि आजाद। अब इब्लीस के कब्जा से आजाद हो, अब तुम रिहाई पा चुके हो, अब डरने की कोई जरूरत है नहीं। यूहन्ना की इंजील 14 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर क्या करे? अमल करे। और मेरा बाप और मैं, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ क्या करेंगे? सुकूनत करेंगे। जो कोई मुझसे मोहब्बत रखता है वो क्या करे कि मेरे कलाम पर भी अमल करे। तो फिर मैं और बाप उसके पास आएंगे और उसके साथ क्या कहेंगे? हमेशा सुकूनत। सुकूनत का मतलब पता क्या? हमेशा लिए आ जाना। कब्जा कर लेना घर ते आके है। जिन्हें कोई ताड़ा रिश्तेदार आवे तो जान का ना ही ना लवे। हेलो, सुन रहे आप? ताड़ा कोई रिश्तेदार आ जाए तो कहो मैं तो भाई हुणे इत्थे रहना, मैनू तो भावें जो मर्जी कहो, हुण मैं तो इत्थे रहना। बाइबल कहती खुदा सुकूनत करता है। सुकूनत का मतलब है बस जाता है। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे हुक्मों पर, जो मुझसे मोहब्बत रखता है, वो मेरे हुक्मों पर क्या करे? अमल करे। कैसे रहेगा? कौन चाहता है कि यीशु की जिंदगी च घर च रहे? कौन आप करे जरा? आप सब चाहते हैं? कोई नहीं चाहता किसी बाकी कितना प्रॉब्लम है? कितने लोग चाहते हैं कि यीशु उनके साथ रहे हमेशा? लिहाजा ने यीशु भी, खुदावंद भी, रूह कुदस भी। प्रेज़ गॉड। ये कैसे मुमकिन होगा? ये गीत गाने से नहीं होगा, ये रेगुलर इबादतें करने से नहीं होगा, ये खुदा के कलाम को जो हम सुनते और पढ़ते हैं उस पर अमल करने से होगा।
تو کیا کرے گا خداوند کہ باپ بھی اور بیٹا بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ سکونت کریں گے. جو کیا کرے گا؟ حکموں پر کچھ ہی بولو ذرا. حکموں پر جڑا پیار کردا ہے وہ خدا دے گل بھی ماندا ہے. بیوی کہے کہ میں تینوں سب بہت پیار کرنی ہے, میں ویکھاں نا تے میرا دن ہی نہیں لنگدا, میرا تے سا بند ہوندا جے تو گھر نہ آویں تے میں تینوں بڑا پیار کرنی ہے, میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتی. جے بندہ کہے اچھا تو مینوں اتنا پیار کرنی, اچھا پلی لو کے جا میرے لیے ذرا بجے تے میرا ہاتھ بارہ ہی نہیں تے ذرا جا چاہ دے ایک کپ بنا کے لے, پیار بڑا کرنی, چاہ تو کوئی نہیں بنانی. اج بہت سارے لوگ نے یسو تینوں بڑا پیار کرنا ہے, خداوند میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا, اسی تینوں چھڈ کے کتے جائیے, ساڈا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. پیار کرنا اچھی بات ہے لیکن اس سے کام نہیں چلے گا. جب وہ کہتا ہے نا کہ چاہ بنا کے لیا, چل جا دعا کر اٹھ کے, چل جا کلام پڑھ اٹھ کے, چل گال نہیں کرنی, فراڈ نہیں مارنا, جھوٹ نہیں بولنا, غلط کام نہیں کرنے, زناکاری نہیں کرنی, بدکاری نہیں کرنی, مکاری نہیں کرنی, چوری نہیں کرنی, کسی کا بیڑا نہیں غرق کرنا. خداوند یہ نہیں ہو سکتا, پیار تینوں بڑا ہی کرنا ہے. یہ اس نافرمان عورت کی طرح ہی ہے, بیوی کی طرح جو اپنے ہسبینڈ سے کہتی محبت کرتی ہوں لیکن اس کی بات نہیں مانتی. میرے بھائی اور بہنوں, جو کوئی یسوع نے کہا مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کے حکموں پر عمل بھی کرتا ہے, کلام پر عمل بھی کرتا ہے, اور اگر ایسا وہ کرے گا تو پھر میں اور باپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے. اور جو باپ تے بیٹا ساڈے نال ہے تو جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر سانوں کس چیز کا ڈر؟ پھر کو خوف ہے؟ یہاں سے کہا خوف نہ کر, میں تیری مشقت کو, تیری مشکل کو, تیرے درد کو, تیری تکلیف کو اور ان مصیبتوں کو جو تو میرے لیے اٹھاتا ہے میں جانتا ہوں. میں آ گیا ہوں, میں مردہ نہیں ہوں. مردہ کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ ہلو اونچی بولو ذرا بھائیو, کون کسی کی مدد کرتا ہے؟ زندہ. مردہ پمیں ہٹلر ہے, بہت طاقتور شخص نکلے, سکندر اعظم ہے, وہ مردہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرا نقصان کرے, ہٹلر صاحب اٹھو, اتنا بڑا وارئر کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ مردہ ہے وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا. یسوع مسیح مردہ نہیں, اس نے کہا میں زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا اور زندہ ہی رہوں گا. جڑی چیزاں تو خوف دلاندی نے نا, موت کا خوف جو ہے اور عالم ارواح کا خوف ہے, اس کا کنٹرول بھی اب میرے پاس ہے. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. موت ڈر لگتا ہے, ہائے مر گئے تو کی کریں گے, آئے خداوند نو آ کر لیں, نو آ کر لیں. میں بھی اکثر کہتا ہوں خداوند نو آ ذمہ داریاں پوری کر لیں, لے جائیے میرے کوئی حال نہیں. ڈر اور خوف کی حالت میں ہم زندگی گزارتے ہیں, لیکن بائبل کہتی ہے کہ خوف لوکاں دے شکلاں ویکھ لو, گرجیاں چاہندے نے, 20 سالاں تو ایلڈر نے, 15 سالاں تو مبشر نے, 30 سالاں تو وہ ڈیکن نے. انہاں دی اپنی زندگی ہوندی ہے تو گھر دے دی اپنی زندگی کی بدلنی. شکلاں جویں دیاں لے کے جاندیاں نے 13 وجے ہوندے نے, منہ 16 کلو دے ہوندے نے انہاں دے, جویں دے لے کے آندے نے اوویں دے لے کے واپس چلے جاندے نے. جدوں بھی جاؤ یہی حال ہوندا, رونا پٹنا سارے. میں نے بہت سا دفعہ دیکھا لوگ روتے پیٹتے رہتے ہیں, ڈر اور خوف کی زندگی میں وہ رہتے ہیں. ہمیں آزاد کیا گیا میرے بھائی اور بہنوں, ہم بے خوف زندگی گزارنے والے لوگ. لکھا ہے وہ جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے اکٹھا کرتا ہے, اور وہ جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹتا ہے. ہمیں پہلے خداوند کے کلام پر عمل کرنا ہے اور پھر ساری چیزیں ہمارے اختیار میں. ہم نے عبادت جو ہے نا وہ جوتوں کو, کپڑوں کو, اچھی لائف سٹائل کو سمجھا ہوا. اچھی زندگی جو گزارن, لائف سٹائل بڑا ماڈرن لائف سٹائل, ہم کہتے ہیں یہ عبادت ہے. میں عبادت کرنا خدا مجھے کچھ دن, ہم نے اس کو عبادت سمجھا.
रसूल पौलुस रसूल कहता है हमें कौन सी चीज मसीह की मोहब्बत से जुदा कर, उसकी इबादत देखे और अपनी इबादत देखे। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुद ही का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए। मेरे पीछे वाले ये इबादत है। जो कुछ हमें चाहिए ये हमारे बाप को इसकी फिक्र है। बड़ी मेहनत करते लोग लेकिन उन्होंने पूरी नहीं पैंदी, ऐसा है कि नहीं? अन्य वाह पैसा भी आंदा बाजी साहब जी समझ नहीं आती जानदा किथे वे। मजदूर लिखा अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है, तो पांदा थलों निकली जाता। क्यों? क्योंकि डर और खौफ की इबादत है। बाजियां कहनगियां इस बारी मेरे को कपड़े है नहीं, मैं हर बारी आए कपड़े पा के जाऊं तो मैं रिपीट करूंगी उन फिर कपड़े। उनकी इबादत कपड़ों तक महदूद है। कोई कहता मेरे पास शर्ट नहीं, मेरे पास जूता नहीं, मैं कैसे इबादत कर सकता हूं? आपकी इबादत का, आपकी तारीफ का, शुक्रगुजारी का तल्लुक आपके कपड़ों से, बदन से, जाहिर से नहीं बल्कि आपके बातिन से है। देखिए वो ज़ाहिरी नहीं देखता, वो आपकी बातिन की सच्चाई को पसंद करता है। वो चाहता है खौफ तो बाहर निकलिए से, कोई शय है तो नहीं शय चल भी जाम से, कुछ भी परवाह नहीं है। कोई चीज हमें रोक नहीं सकती कि हम खुदावंद की हुजूरी में आगे न बढ़ सके। मुझे कई साल हो गए मसीह में और मैं बहुत सारी चीजों का अब भी शिकार हो जाता हूं, लेकिन कोई चीज मसीह में मेरे लिए कोई रुकावट का सबब नहीं बने जो मुझे आगे बढ़ने से रोक सके। हाँ, वो कमजोर कर लेती है थोड़ी देर के लिए मुझे, थोड़ी देर के लिए वो मुझे रोक सकती है, लेकिन वो मुझे ज्यादातर तक रोक नहीं सकती। मैं आगे बढ़ूंगा। देखा सादक की मुसीबतें तो कुछ ही बोलो, सादक की मुसीबतें तो मगर खुदावंद उसको उसकी सारी मुसीबतों से कुछ ही बोलो रिहाई बख्शेगा, सारी मुसीबतों से, थोड़ियां नहीं। मैं इसलिए यूहन्ना को कहता खौफ ना कर, दुनिया में हो गया मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे देखूंगा। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत हम पढ़ेंगे। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान दिए जाता हूं, जिस तरह दुनिया देती है उस तरह नहीं। इत्मीनान का क्या मतलब है? हमें यीशु ने क्या दिया? खौफ के बाद क्या होता है? जब खौफ नहीं होता तो फिर क्या होता है? आपकी जिंदगी में सुकून ही सुकून। और मुझे कई बार ये बड़ी हैरत होती है कि ईमानदार एक मुश्किल से निकलकर दूसरी मुश्किल में जा पड़ता है तो यीशु कहता है कि खौफ ना कर, बल्कि तू की पाएगा मेरे से इत्मीनान पाएंगे, पीस, इत्मीनान, तसल्ली। ये कैसे मुमकिन है? ये मसीह के साथ मोहब्बत करने और उसके कलाम पर अमल करने के सबब से होता है कि हम फिर हमेशा तसल्ली और इत्मीनान पर। यीशु ने कहा मैं अपना इत्मीनान जिਵੇਂ दुनिया दिंदी है, दुनिया का इत्मीनान देखा की है? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ को चीज मांगते हो मुश्किल दे विच, हाँ हो जाएगा तो टाइम पे आके की कहना भाई सॉरी नहीं हो सकता। बहुत सारे हमारे घरों में वाकयात होते हैं। हमारे को अजीज जब कल भी हम गए हैं वहां पे, अल्ताफ भाई हमारे खुदावन में सो गए 18 चक में। तो बहुत सारे लोग हम उनकी फैमिली को तसल्ली देते, खुदा तुहानू बड़ी तसल्ली दे, हौसला रखो है, खुदा दी जो मर्जी है, सीधे च बंदा कुछ नहीं कर सकता। हमारी बातें अच्छी हैं लेकिन हमारी बातें उनके लिए तसल्ली का बायस। तसल्ली उनको कब मिलेगी? बोले जरा, तसल्ली कब मिलेगी उनको? जब उनकी जिंदगी में यीशु है। जब यीशु उनकी जिंदगी में आएगा तो फिर क्या मौत, क्या भूख, क्या नंग, क्या लड़ाइयां, क्या झगड़े, क्या फसाद, क्या बीमारी, कोई नंगापन फिर उनको खौफजदा
نہیں کر سکتے. وہ کہیں گے کہ خداوند کی تعریف ہو، جس نے دیا اسی نے لیا، اسی کا نام ہمارے. یہ وہ اطمینان ہے. حیرت کی بات ہے، یوب کے 10 بچے اس کے سامنے پڑے، 10 جنازے کٹ ایک دن دے وچ، تے کئی نوکر تے سارا کچھ جانور جو بھی شہد کو سب برباد. اور بیوی اس کو برا بلا کہہ رہی ہے، خداوند کو بھی برا بلا کہہ رہی ہے، خدا نے اگر چنگا کیا تھا. لیکن وہ ٹھیکرے پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ خداوند تیرا شکر ہو، یہ سب کچھ تیرا تھا، تو نے لے لیا، تو نے دیا. یہ وہ اطمینان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں. اس کے دوست، اس کے رشتہ دار عزیز کو کیا کہہ رہے تھے؟ تیرے کو کوئی غلطی ہوئی ہے یوب، تو نے کوئی گناہ کیا جو تیرے گناہ کی سزا سارے میں ملے. آج بھی بہت سے لوگ ججمنٹ کر دیں، تینوں ڈران گے، خوف زدہ کریں گے. نہیں، آ کر اے کر، انج کر، وہ کر، فلاں کر، ٹمکان کر، صدقہ صدقہ دے، تاں انج دے بتھیرے پٹھی عقل والے مشورے دے ہوں گے. ڈرائی جان کے دیکھ دودھ کڈو، کوئی شکر گزاری کڈو باہر. لیکن جب آپ کی وسیع زندگی میں ہے تو پھر آپ کو کسی چیز کی ڈر اور خوف نہیں. آپ کو پتا ہے ایوب کی طرح کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی مرضی سے. میں کبھی خدا کو بلیم نہیں کرتا، میں کبھی بڑبڑاتا نہیں، کڑکڑاتا نہیں، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی میں اس لائق نہیں. جو کچھ میری زندگی میں مجھے چاہیے ابھی مجھے نہیں مل رہا نا، میں کبھی اس کے لیے ضد نہیں کرتا خدا کے حضور میں. میں کہتا ہوں شاید خدا مجھے اس قابل ابھی نہیں سمجھتا، جب میں اس چیز کے قابل ہو جاؤں گا خدا مجھے وہ دے دے گی. یا شاید خدا کی مرضی کہ یہ چیز مجھے اگر میرے ایمان کا بیڑا گرک کر سکتی ہے، میری زندگی تباہ کر سکتی ہے، تو اس لیے بھی وہ مجھے نہیں دے. کہ کون سا لکھا کہ ایسا بچہ باپ ہے جس کا بیٹا اس سے کیا مانگے؟ انڈا مانگے تو وہ اس کو کیا دے؟ کبھی آپ نے بچے کو خطرناک چیز دی ہے؟ کیوں کہ یہ میرے بچے کا. تو جو ہم خام خواہ کئی دفعہ زداں کر کے بہ جانے ہیں، بچے نے آنے نہیں جب چھوٹے چھوٹے زداں کر کے بہن گے، نہیں اڈیاں رگڑ دیں، نہیں آئے شالا نہیں، میں نہیں لینی ہے، تو جو مرضی کر لا، مجھے دے لا کے، مجھے ہوں لا کے دو، میں موبائل لینا ہی لینا، لینا ہی لینا، لینا. بچوں بھی گھنٹے رکھتے کہنے جی موبائل کی جانی چھوڑ دو. بس اب جی دعا کرو. ایسے بدتمیز ہوتا جا رہا ہے، ادھر طریقہ کار، ادھر رویہ بدلتا جا رہا ہے، ادھر گفتگو بدلتی جا رہی ہے، اتنے دین دیاں گلاں کری جاندا ہے، اتنے 24 گھنٹے موٹو پتلو کری جاندا ہے. ایسے کلام پڑھتا ہی نہیں، نہ دعا کرتا، سارے نہ بیٹھ کے بھی بعد کئی بیٹھے نکمے پادریاں دے لیانے بھی. یہ بات سن لے سارے لوگ. کئی پاسبانوں کے آلگو ڈیکنوں مبشروں کے بچوں کو چرچ میں انہوں نے دیا ہوتا ہے موبائل، لگے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ. یہ وہ حالت ہے، ڈر اور خوف ہے، یہ میرا روی ہے جس کی وجہ سے ہمیں عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں اپنا ابدی اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، خوف نہ کرو. دنیا جس طرح اطمینان دیتی ہے، بھائی خدا تمہیں بڑی تسلی دے، پر آپ تسلی پاتے نہیں ہیں. خداوند آپ کو برکت دے، آپ برکت نہیں پاتے. خداوند آپ کو شفا دے، آپ شفا نہیں پاتے اس کے کہنے سے. لیکن جب خداوند آپ کی زندگی میں آتا ہے، آپ برکت بھی پاتے ہیں، تسلی بھی پاتے ہیں، زور بھی پاتے ہیں، قوت بھی پاتے ہیں، قدرت بھی پاتے ہیں، نجات بھی پاتے ہیں، اور ایک اور زندگی بھی گزارتے ہیں. پڑے ہوئے گرجے، خالی دل، مسیح کی محبت سے، اطمینان سے. زبور 55 اس کی 18 آیت میں پڑھیں گے. لکھا ہے اس نے اس لڑائی سے جو میرے خلاف تھی میری جان کو سلامت چھڑا لیا. زبور 55:18 آیت. اس نے اس لڑائی سے جو میرے خلاف تھی میری جان کو سلامت چھڑا لیا، کیونکہ مجھ سے جھگڑا کرنے والے بہت ہیں. عبرانیوں کے خط میں، عبرانیوں کا پہلا باب
और उसकी 14वीं आयत अगर आपने निकाला है तो काइंडली मदद कीजिएगा पढ़ने में। मैं ईमान रखता हूं कि आज का कलाम ये बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर देगा और वो बेखौफ होकर खुदा की हुजूरी में आएंगे, कोशिश करेंगे, वो डरेंगे नहीं, वो मायूस नहीं होंगे, वो बेदिल नहीं होंगे, क्योंकि खुदावंद की हुजूरी उनके तमाम जुओं को तोड़ती है और खुदा के फरिश्ते हमेशा खुदा के लोगों के साथ रहते हैं। ये वादा है और ये खुदा ने हमारे लिए रिवॉर्ड हमें भेजा। जब हम निजात पाते हैं, हम पानी का बपतिस्मा के वसीला से मसीह को कबूल करते हैं, हम नया जीवन हम लेते हैं, नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करते हैं, तो फिर खुदा हमारी फिक्र करता है, हमें संभालता है। अफसोस ये कि हम एंड तक नहीं देखते कि खुदा ने हमारे लिए क्या क्या किया है जब हमने उसके बेटे को कबूल किया है। तो जी इब्रानियों का खत पहला बाब उसकी 14वीं आयत जी जी कलाम अक़दस में लिखा है, क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातर खिदमत को भेजी जाती है। सुनिए क्या, हेलो, इब्रानियों का खत पहला बाब 14वीं आयत, क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को, जब आप निजात पाते हैं तो आपके लिए क्या मिलता है? आपको कुछ ही बोलो। ये सवाल है कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ कबूल करते हो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ पानी का बपतिस्मा लेंदे हो, तो फिर क्या करता है खुदा? आप निजात पाते हैं, आप उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, आप नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करते हैं, तो फिर आपके लिए खुदा क्या करता है? खिदमत गुजार रूहों को भेजता है। खिदमत गुजार रूह कौन होंगी? सर्वेंट स्पिरिट्स। आपके जब हालात अच्छे हो जाते हैं, पैसा पे आ जाता है, अच्छा घर ले लेते, तो फिर आपकी क्या कोशिश होती है कि अब उसमें कोई ना कोई सफाई करने वाला, बर्तन धोने वाला, रोटी पकाने वाला कोई सर्वेंट रखे गया। जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो लिखे, क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातर उनकी खिदमत करने के लिए भेजे हैं। इस साडा मुंह वेखन लिए फरिश्ता नहीं बैठा हुआ साढ़े आले दुआले। वो खिदमत गुजार रूहें जो है वो हमारे लिए एंटरटेन नहीं है, जिन्हें आजकल है 4-4 सिक्योरिटी गार्ड रखे होंगे ने, ते डाकू फिर भी बंदा मार के वो कुछ भी नहीं करते सिक्योरिटी गार्ड। ये शो पीस नहीं है, ये आसमानी सिक्योरिटी और आसमानी खिदमत गुजार फ्री में आपको दिए गए। फिर भी आप कोई नशे पे जा फिरेंगे ऐसी। देखा, शिफा की भी खिदमत गुजार रूह है। बैथेस्दा हाउस में आपने देखा एक शख्स 38 बरस से वो किनारे पे बैठा हुआ और आसमान से एक फरिश्ता आता है। केड़ा फरिश्ता? शिफा वाला फरिश्ता। वो आके पानी को हिलाता और लोगों की नजरें उस पानी पर, हाउस पर होती थी, और जैसे ही पानी हिलता लोग क्यों च, और जो पहले उसमें पानी में कूद जाता वो भावें कोड़ हुंदा, केड़ी भी बीमारी हुंदी, सारी बीमारियां। हेलो, सुन रहे हैं आप? तो क्या बाइबल मुकद्दस में लिखा है? क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं है? कभी इस्तेमाल किया ना रूहां का? नौकरानी रखी हो तुसीं घर दे विच रोटियां पकाने वाली, ते सारा दिन दा गुस्सा बंदे ते कड्डो, सारा दिन किचन च रहनी है मैं, गल नहीं कोई बात नहीं, इन्नी गर्मी च तुहानूं रोटी पका दा मैं, उसे बना देनी तुहानूं, तो बंदा की कहेगा? तेरी अकल काम करदी कि नहीं करदी? जो तेन मैं रोटी पकाने वाली दी तो तेरा दिमाग खराब है, तो आप तो सड़न की कोशिश कर रही, फिर आप तेरा दिल करता है मैं गर्मी च मरा। अब सफाई करने वाली को है तो आप ही लगी रहे, नहीं तो बैठ है मैं करनी है, दोनों की प्रॉब्लम हो तो मजे ले रही है। आज खिदमत गुजार रहे बैठे नहीं कमियां है, इन्हें प्यार के सारा कुछ आप करता रहे, सानू भी लगे।
क्या वो सब खिदमत गुजार में नहीं है? सारा खुदा ने हमारे लिए इसलिए खिदमत गुजार में दिए, खुदा ने इसलिए हमसे ये कलाम किया ताकि हम बेखौफ हो जाएं। यूहन्ना खौफ ना कर, हम मैं जिंदा हूं तेरी मदद करने के लिए, हमेशा तेरे साथ होगा, मुझे कहीं नहीं किसी मुश्किल में छोड़ूंगा नहीं। आज भी बहुत सारे ईमानदार आपे मुश्किलों से पे नहीं की। दुआ कीजिए और शुक्रगुजारी कीजिए कि खुदाबंद ने आपके खौफ को दूर किया। पता है सारा कुछ कीता क्यों खुदा ने? किसी का छोटा ढिड ते किसी का बड़ा, इंजी भैणा भी इंजी, कई दिन न्याणे तो ढिड बड़े बड़े होंगे। ये बड़े ढिड करने लिए नहीं खुदा ने तुहानू अन्न दिता, ये इसलिए दिया है ताकि आप उसकी बेखौफ हालेलुया जो गिरजे आना है अपनी देश की चुल्ले तो ला के आना। जे गलती ना गिरजे आ गए हो भाईओ ते काम जो है उन्हें चुल्ले च पाओ, उसको फिर ना याद करो, फिर देखो कि मैं जिसके पास जा रहा हूं वो मेरा आसमानी बाप है, मुहैया करने वाला है, अब वो मेरे लिए आप मुहैया करेगा। बेवा को एक डंग दा आटा ते सारा टब्बर ही उहदे कोल आ वसिया, एलिया भी आ वसिया, लोग पहले बड़ा खाते हैं सन। एक वक्त का खाना है और कितने लोग उसके साथ खा रहे हैं। पहले बेवा डरी, खौफ खादा ने ले साढ़े को देखो टाइम की रोटी, मैं तो मेरा बेटा खाएगा, फिर मर जाएंगे, तेन कुछ तो ये पानी के नाल रोटी भी मंगन लग पिया। एलिया ने कहा जैसा मैं कहता हूं वैसा कर ले तो नहीं रहेंगी। और अगर एलिया की बात ना मानती तो वो उसी खौफ में मर जाती, लेकिन वो जिंदा रही और उसके साथ कई लोग, ये वो और उसका कुनबा कहते खानदान। बेवा दिन लेरे लगता कोई नहीं, तो बेवा दे आसे पासे सारे घूम रहे थे, वो उनको खिला रही थी। एलिया बाइबल मुकद्दस में लिखा बादशाह के घर से निकला और क्रेत के नाले पर जा बैठा। कौवे जो लोगों के हाथों से चीज छीन कर ले जाते हैं, वो उसको वही खुराक दे रहे थे जो बादशाह के सर बैठकर खाता था। कोई खौफ नहीं था, बल्कि इंतजार करता आए नहीं तक खाना नहीं आया, वेला टारा बैठा, कोई काम भी नहीं को कारने, असी लगे रहने सारा वेले खप जाने, असी मर मर काम कर ते साडे पल्ले फिर भी कुछ नहीं करना, क्योंकि खौफ। लेकिन जब हम खुदा के जरिए में झुक जाते हैं तो फिर हर तरह से खुदावंद का फजल हमें संभाल लेता है। मेरे भाई और बहनों, आइए हम अपने आप को खुदावंद के हाथों में दीजिए, आइए हम अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दीजिए, अपने आप को सरेंडर कीजिए, उसके ताबे कीजिए, ताकि हम बेखौफ जिंदगी गुजार सकें। खुदावंद आपको बरकत दे। अपनी आंखें बंद कीजिएगा और हम सब खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे।